عزیز بہنوں اور بھائیوں، بڑے غور سے آیات کو سمجھیے گا اور سنیے گا۔ انسان اپنے آپ کو ان آیات کے پیچھے چھپاتا ہے، پر میں آپ کو آج یہ بات سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں تو بھی اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، اس عام پروسیس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا گناہ سے ناطہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاللویا۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی قدرت والے نام میں تمام ویورز کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر سیمسن پال بشیر ہے اور میرا تعلق فیلاڈیلفیا پینٹیکوسٹل چرچ آف پاکستان رجسٹرڈ گروپ سے ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیں کلام مقدس کو سنیں، سیکھیں اور سمجھیں۔ ایک خاص موضوع جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو گنہگار گردانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گنہگار شخص ہوں، اور وہ اپنے گنہگار ہونے پر اقرار کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ شاید میں سچ بول رہا ہوں، گناہ کرتا ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو گنہگار کہتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں اور سچ بولنا چاہیے، یا وہ اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بنانے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اپنی گناہ آلودہ جو اس کی روش ہے یا اس کی عادت ہے اسے بدلتا نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ یوحنا رسول کی بابت لکھا گیا عام خط، پہلا عام خط نکالیے، اسے میرے ساتھ دیکھیے۔ یوحنا عارف پہلا عام خط، پہلا باب اور اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے 8ویں آیت سے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بڑے غور سے ان آیات کو سمجھیے گا اور سنیے گا۔ انسان اپنے آپ کو ان آیات کے پیچھے چھپاتا ہے اور عاجز اور انکسار اپنے آپ کو شاید بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، پر جہاں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، تو آج ایک بات اور سن لیجئے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اگر کلام کہتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو فریب دیتے ہیں، پر میں آپ کو آج یہ بات سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں تو بھی اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ اس بات کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں تو بھی اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم سچائی سے ناواقف ہیں۔ جہاں لکھا ہے اور ہم میں سچائی نہیں، پر میں یہ کہوں گا کہ کلام یہ اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں تو بھی ہمیں سچائی سے، حقیقت سے واقفیت نہیں ہے۔ کس طرح سے؟ اب اس کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے، اور آیات کے پیچھے چھپ کر اپنی گناہ آلودہ یا گناہ کی زندگی جو ہماری گناہ سے کی روش ہے
اور गुनाह बार बार पानी की तरह पीना और खाने की तरह और लिबास की तरह उसे ओढ़ना जो हमारी आदत बन चुकी है, और फिर हम हर सब्बत हमारे गुनाह माफ भी हो जाते हैं, और फिर हम हैबिचुअली अपनी उस आदत को चूंकि कंट्रोल नहीं है, गुनाह का करने की आदत है और रुक नहीं सकते कदम, इन आयात के पीछे छुपकर हम अपने आप को गुनहगार कहते रहते हैं और माफी भी लेते रहते हैं, माफियां भी होती रहती हैं, और फिर हम अपने अब निजात के उस आम, अजीज बहनों और भाइयों, छुटकारे के उस आम प्रोसेस को भूल जाते हैं। हमारा गुनाह से नाता खत्म हो चुका है। पतरस रसूल की इस बात को पहला पतरस 3 बाब उसकी 21वीं आयत में देखते हैं, तो वो कहता है कि और उस पानी का मुशाबा भी ये नहीं, बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, उससे जिस्म की नीयत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना। हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं या हमें बपतिस्मा दे दिया जाता है, पर खालिस नीयत जिसका पतरस रसूल अपने खत में जिक्र करते हैं कि खालिस नीयत से खुदा का मुश्ताक होना, तो वो कहां रह जाता है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, गौर से सुनिए, मैंने फिर इसको दोहराने लगा हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि हम गुनहगार हैं, तो भी हम अपने आप को फरेब देते हैं और सच्चाई से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। किस तरह से? 2 हवाले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी दलील को दूंगा, कलाम से भी हवाला जात दूंगा और एक दलील दूंगा, जिस्मानी या आम एक एग्जाम्पल, तमसील दूंगा जिससे हम समझ सकेंगे। कुलसियों 2 बाब, और दूसरे बाब में 12वीं आयत में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। ये हमारी हालत थी, किस कदर हम मुर्दा थे, नामख्तूनी थी, जिस्मानी गुनाह से मुबर्रा थे हम लोग। पर सुनिए, उस कंडीशन में, गुनाह आलूदा कंडीशन में, गुनाह की जब हम गुनहगार थे, उस कंडीशन में हम पर एक बड़ा फजल हुआ है, हम पर एक बड़ा रहम हुआ है। और उस कंडीशन में हमारे साथ क्या हुआ, और हुक्मों की वो दस्तावेज 14 में लिखा है, मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर मुआफ किए। और कि हमने माफी नहीं मांगी थी, हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे कसूरों को, गुनाहों को माफ किया। और लिखा, हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उस दस्तावेज में, उस कागज में, उस अमालनामे में लिखा गया था कि हम गुनहगार थे, हम बदकिरदार थे, हम जिनाकार थे, हम चोर थे, हम लुटेरे थे, हम बेगाने माल का लालच करने वाले थे, हम झूठ बोलने वाले थे, हम और खुदाओं की इबादत करने वाले थे। हमने बहुत कुछ था, मगर क्या हुआ कि वो सलीब पर, अब सलीब का पैगाम तो हलाक होने वाले के लिए बेवकूफी है, मगर अजीजों हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा सलीब के मकाम पर जाएं, हम उस कर्बनाक सलीब के नीचे, उस कांटों से मुलब्बिस सर पर जाएं, उस
उन हाथों पर जाकर गौर करें, उन पांवों पर गौर करें, उस पसली पर जाकर गौर करें जिस पर वो गुनाह लिखे गए और कीलों से जड़कर जब यीशु को कोड़े लगे वो दस्तावेज फटती जाती थी, गुनाहों की वो दस्तावेज फट गई। और खुदा बाप ने जब देखा कि बेटे का कफारा हुआ है, उसने वो सारे गुनाह देखना बंद कर दिए जो मैंने और आपने किए थे, दस्तावेज ही हटा दी, कीलों से जड़कर सामने से हटा दी। अब दूसरा हवाला पढ़ते हैं, ज़बूर 103। ये नबूवत है, ये नबूवती ज़बूर हमें क्या सिखाता है। ज़बूर 103 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को जरा गौर से देखेंगे। दाऊद यीशु मसीह के सलीब पर जान देकर हमारे गुनाहों की मखलसी जब उसने करवाई, तो फिर उसके बारे में यहां मरकूम है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर जो उससे डरते हैं। जैसे पूरे पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। अब दाऊद को यह बता दिया गया था, अगरचे दाऊद इस क्लैरिटी के साथ, उस क्लैरिटी के साथ, जिस क्लैरिटी के साथ हम आज समझते हैं, दाऊद नहीं भी समझ सका, पर नबूवत के तौर पर यह बता दिया गया। इसके अलावा अजीजों, दो हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं, कुलसियों और ज़बूर। अब यहां पर गुनाह, मैंने कहा कि अगर हम कहते हैं कि हम गुनहगार हैं, तो फिर भी अपने आप को फरेब देते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई से वाकिफ नहीं है। अब कलाम यहां कह रहा है कि उसने तो हमारे गुनाहों को, हमारी बदकिरदारी को, हमारी खताओं को इतना दूर फेंक दिया जैसे पूरे पश्चिम से दूर है। और फिर कुलसियों में हम पढ़कर आए हैं कि उसने हमारे गुनाहों को, गुनाहों की दस्तावेज को सलीब पर कीलों से जड़कर अपने सामने से हटा दिया है। अब आते हैं हम वही यूहन्ना के खत में। तो मैंने कहा कि हम अपने आप को ये गुनहगार कहकर फरेब ना दे। अब एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारी जेलों में बहुत से कैदी हैं, उसमें कुछ मुजरिम हैं और कुछ मुलजिम भी हैं। मेरी अजीजवान और भाइयों, मुलजिम या मुजरिम उस वक्त तक गुनहगार कंसीडर नहीं किया जाता, उस वक्त तक सजा के का हकदार नहीं होता, जब तक अदालत, जज ये ना कह दे कि ये गुनहगार है, इसने ये गुनाह किया है, इससे ये गुनाह सरजद हुआ है, इसलिए मैं इसे मुजरिम करार देता हूं, सारे सबूतों के साथ और सारी दस्तावेजात के साथ। जब वकील केस पुटअप करता है कोर्ट में जज के सामने, तो जज फिर फैसला देता है कि ये मुजरिम है, इसने गुनाह किया है। मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है, गौर से सुनिएगा। मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या आज हम अपने आप को जो मुजरिम कह रहे हैं, कलाम से वाकिफ है? हम यीशु के कदमों में आए, यीशु मसीह के हुजूर झुके और यीशु से कहें, ऐ यीशु हम पर रहम कर। अगर दूसरे बात को मैं देखूं,
दूसरे बाब, यूहन्ना के खत में दूसरे बाब को, तो पहली और दूसरी आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी है। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। और ये भी मैं बताता चला जाऊं, यीशु मसीह इसलिए बाप की दाहिनी तरफ नहीं बैठा हुआ कि हम गुनाह करते जाएं और वो हमारी मदद करता चला जाए, हमें माफ करवाता जाए, और हम गुनाह करते रहे वो मदद करता जाए और वो हमारी शिफायत करता जाए कि हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु हमारे गुनाहों में बराबर का शरीक है। क्यों? क्योंकि यीशु को मालूम है कि ये गुनाह करेंगे। अजीज बहनों और भाइयों, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि यीशु मसीह वहां बाप की दाहिनी तरफ बैठ के हमारे गुनाहों की शिफायत करता रहता है। इसको समझने की जरूरत है। यहां जब लिखा है ना यीशु मसीह रास्तबाज, तो अजीजों इस बात को समझना है कि जिस तरह बाप अपने बच्चे के साथ चल रहा होता है ना, या माँ बाप घर में अपने बच्चों को नोट कर रहे होते हैं कि ये गलती भी करता है तो उसे माफ करते हैं, ये मिस्टेक करता है ओवरलुक करते हैं, ठीक है, तो वो इसी तरह साथ साथ समझाते भी हैं कि नहीं बेटा ये नहीं करना, इससे दूर रहना है, ये गलत काम है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, औरों के लिए ठीक नहीं है, ये झूठ है और ये राह सही नहीं है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करते रहते हैं, इसी तरह यीशु मसीह भी हमारे साथ साथ रहता है। और इट डजंट मीन कि वो हमें जानता है कि हम गुनाह करते, हम खताकार हैं और हम कामिल नहीं हो सकते। हालांकि बड़ी खूबसूरत यीशु मसीह ने बात कही है कि चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो यीशु मसीह कहते हैं चाहिए कि तुम कामिल हो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तो जरा गौर कीजिए यीशु मसीह क्या चाहते हैं। यीशु मसीह हमारे बारे में किस तरह के थॉट्स रखते हैं, ख्यालात रखते हैं। इसका मतलब नहीं है कि यीशु हम गुनाह करते रहें, हम गुनाह की जिंदगी गुजारते रहें और यीशु मसीह बैठकर हमारे गुनाहों की शिफायत करता रहे। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, गौर से समझिए, आयतों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है और ना ही हम अपने आप को गुनहगार बता कर अपने आप को हम सच बोल रहे हैं। जी देखिए हम तो सच बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम गुनहगार हैं। या अपने आप को हलीम बताने की कोशिश या खाकसार, तो इससे ना तो खाकसारी ना हमारी सच्चाई, हम सच्चे साबित हो जाते हैं नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इन आयतों की इंटरप्रिटेशन, इन आयतों की मानी अपने मानी में ले रहे हैं, अपनी समझ से ले रहे हैं, या जो हमें सिखाया समझाया जाता है हम उस तरह से इनके मानी निकालते हैं, जो कि गलत है। वो तो हमारे गुनाहों को याद ही नहीं कर रहा और हम खुद ही हम गुनहगार हैं, और वो इससे भी खुश नहीं हम अपने आप को गुनहगार कह रहे हैं। वो इससे भी खुश, यीशु इससे कदम खुश नहीं, खुदा बाप इससे कदम खुश नहीं कि हम अपने आप को गुनहगार। भाई क्यों? अब तो खालिस नीयत से खुदा का मुश्ताक होना है और कामिल होना है, रास्तबाज होना है और खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है, सच्चाई की रास्तबाजी की, मसीह की तरह की जिंदगी गुजारनी है। इसलिए याद रखिएगा, ये फिर मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम इसके ये मानी लेते हैं, ये कलाम हमें ये कहता है कि अगर हम कहें कि हम गुनहगार हैं, बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। तो मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं, अगर हम ये कहते हैं कि हम गुनहगार हैं तो भी हम अपने आप को फरेब दे रहे हैं और सच्चाई से नावाकिफ हैं। तो इसलिए मेरी अजीज बहनों और भाइयों, फजल का वक्त है, अब फजल है हम पर, हम यीशु के पास आए, उसके कदमों में आकर बैठे झुके, वो हमें माफ करता है, वो हर एक गुनहगार को माफ करता है, वो हमारे किरमसी गुनाहों को अर्गवानी जिस तरह के हमारे गुनाहों पर खालिस नीयत से, जब हम झूठी नीयत से माफी मांगते हैं ना, तो यीशु भी समझ रहा होता है, खुदा समझ रहा होता है ये जाली माफी मांग रहा है मुझसे, इसे मालूम है कि ये इसकी नीयत ठीक नहीं, इसने फिर जाकर गुनाह करना है। तो फिर ऐसी ना तो माफी कबूल होती है और ना ही इस तरह कहा जाए कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, वो भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम आयात के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे कि किस तरह से हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है।
کلام تو ہمیں منع کرتا ہے اپنے آپ کو گنہگار کہنے کا. جب خدا گناہ نہیں گندا پورب سے پچھم تک اس نے پھینک دیے اور پھر کیلوں سے جڑ کر اپنے سامنے سے ہٹا دیے, تو ہم اپنے آپ کو یہ راگ الاپتے ہیں جی ہم گنہگار اور ہم گنہگار اور ہم گنہگار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روش ہم خصلتاً ہماری خصلت میں گناہ شامل ہے, ہماری جبلت میں گناہ, ہماری نیچر میں گناہ شامل ہو چکا ہے, اس لیے ہم اس سے باز نہیں آتے. پر درخواست یہ ہے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہم اپنے آپ کو گنہگار نہ جانیں, کیونکہ اس سے کفارے کی, لہو کی, یسوع کی اور خدا کے منصوبے کی تکمیل بھی نہیں ہوتی. اور ہم گویا جس طرح عبرانیوں کے خط میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم پامال کر رہے ہیں, بیٹے کو پامال, اور جس لہو سے ہم پاک ہوئے ہیں ہم اسے بے قدر کر رہے ہیں. اس لیے خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے اس کلام کے سبب سے, اور جاننے کا فضل بخشے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. خالص نیت سے خدا کا مشتاق ہونا اور آگے بڑھ کر زندگی گزارنا ہے, یا پھر وہی ان آیتوں کے پیچھے چھپ چھپ کر اگر ہم کہیں گنہگار, تو پھر ہم ان آیات کے مطابق اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ان کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یہ آیت تو ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے, یہ آیات تو کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے, پر ہم سمجھ اسے کچھ اور رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا, بلکہ خالص نیت سے خدا کے مشتاق ہونا ہے. خدا مجھے اور آپ کو برکت دے, آمین.